محترم ناظرین السلام علیکم، روشنی ٹی وی خبر نامے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ خبر نامہ کا آغاز کرتے حدیث مبارک کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کر مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ آغاز کرنے سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع میں بھاری بارش کے سبب تالابوں میں سیلاب کا منظر، کئی سڑکیں ہوئی زیر آب۔ نندی پیٹ منڈل کے خداون پور میں مچھلی کے شکار کو جانے والا شخص ہوا غرق۔ بھاری بارش سے متاثرہ علاقوں کا ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے عہدیداروں کے ہمراہ لیا جائزہ۔ بارش کے سبب اس ماہ کے 28 تاریخ کو بھی اسکولز کو ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے کیا تعطیل کا اعلان۔ شہر کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا و ڈپٹی میئر ادریس خان نے بلدی عہدیداروں کے ہمراہ لیا جائزہ و عہدیداروں کو دی مختلف ہدایتیں۔ بودن رکن اسمبلی شکیل عامر نے بارش کے مد نظر عہدیداروں کے ساتھ بذریعہ فون اجلاس عمل میں لاتے ہوئے قبل از وقت عوام کو مدد فراہم کرنے کے لیے دی ہدایت۔ وہ عوام کو محتاط رہنے و عوامی نمائندوں کو عوام کی خدمت کے لیے دی ہدایت۔ اس RSP میں پانی کا اضافہ، 26 گیٹس کے ذریعے 1,50,000 کیوزیک پانی کا اخراج۔ نرمل ضلع کی کڑم پروجیکٹ میں پانی کی آمد، 14 گیٹوں کے ذریعے پانی کا اخراج، لیکن 3 گیٹ خراب۔ ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی نے لیا جائزہ۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے ویڈیو کال کے ذریعے عہدیداروں سے حالات کا لیا جائزہ، وہ دی مختلف ہدایتیں جاری۔ بارش سے متاثر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے متاثر عوام میں غذائی اشیاء کی گئی تقسیم۔ مسلسل ہو رہی بارش کے سبب شہر کے کئی علاقے زیر آب ہو چکے ہیں اور بارش کے سبب غربا اپنے روزمرہ کاموں سے بھی قاصر ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاخ نظام آباد کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ان میں غذائی اشیاء کی فراہمی گھر گھر عمل میں لائی گئی اور MSO نوجوانوں کی جانب سے شہر کے کافی متاثرہ علاقے جہاں پر پانی کے بہاؤ کے درمیان مکانات میں تک پہنچتے ہوئے ان کو امداد فراہم کی گئی تاکہ انہیں ان حالات میں راحت مل سکے۔ اس موقع پر MSO قائدین نے شہر کے مرکز خلیل واڑی میں موجود ہاسپٹل چیتنیہ ہاسپٹل کے ذمہ داروں سے بھی اظہار تشکر کیا، جس کی جانب سے اس نیک کام میں امداد فراہم کی گئی اور کہا کہ MSO ایک طلبہ تنظیم ہے اور ایک طلبہ تنظیم کا فرض ہے کہ وہ طلبہ میں رحم دلی و فلاحی جذبے کو فروغ دے اور اسی مقصد کے تحت MSO کی جانب سے اس سخت بارش میں عوام کی خدمات کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر انتظامیہ چیتنیہ ہاسپٹل عبد الرحیم، MSO ذمہ دار شہیر احمد، محمد عارف حسین، محمد سہیل، نواز رضا، ذیشان شعیب، شیخ عمران، محمد شہباز و دیگر موجود۔ MSO ہے دین اور نظریے کی ترجمان، مجھے نبی کی پہرے دار اور پاسبان، شجاعت و بہادری کا کامیاب کارواں، مجھے نبی کی پہرے دار اور پاسبان، شجاعت و بہادری کا کامیاب کارواں۔ MSO 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 مشرقی ثقافت و روایتوں کی ہے
امی اس کے نوجوان سرفروش اور دل نشیں لا تفرقو کے سائے میں کھڑی ہے ایک جان لا تفرقو کے سائے میں کھڑی ہے ایک جان ایم سو ہے دین اور بارش سے متاثرہ علاقوں کا ڈپٹی میر ادریس خان و ضلع صدر مجلس شکیل فضل نے بلدیہ عہدیداروں کے ہمراہ کیا دورہ۔ شہر میں مسلسل ہو رہی موسلادھار بارش کے سبب کئی علاقے متاثر ہو رہے ہیں اور آج ان متاثرہ علاقوں کا ڈپٹی میئر ادریس خان و ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین شکیل فاضل بلدی عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے جائزہ حاصل کیا اور ان علاقوں میں سے پہلے پانی کی نکاسی کے لیے خدمات کرتے ہوئے عوام کو غذا و ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے مطالبہ کیا۔ اسی طرح جن کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے انہیں راحت کیمپ میں منتقل کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر مجلس کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر، مون کارپوریٹر محمد شہباز و دیگر موجود تھے۔ ڈویژن نمبر 31 میں مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد منو علی کا بلدیہ عہدیداروں کے ہمراہ دورہ و برق رفتار کے ساتھ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کارروائی کا اظہار۔ شہر نظام آباد کے بلدی ڈویژن نمبر 31 جہاں پر مسلسل ہو رہی بارش کے سبب کئی گلیاں متاثر ہو گئی تھی، ان میں پانی کی نکاسی و دیگر کاموں کا مقامی مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی نے ضلع کے اولین اوقات میں ہی جائزہ حاصل کرتے ہوئے محکمہ بلدی کے ملازمین کو ہدایت دیتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ کاموں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خود بلدی عہدیداروں کے ہمراہ بھاری بارش میں علاقے کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام کی مشکلات کا جائزہ حاصل کیا اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ ان کی اس ہنگامی خدمات پر عوام نے ان کا تہ دل سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ بلدی جوان مہیپال رزاق، شیخ جعفر و دیگر موجود تھے۔ بودھن حلقے سے وابستہ عوام کو بھاری بارش کے پیش نظر سخت چوکسی اختیار کرنے کی رکن اسمبلی شکیل عامر نے کی تاکید۔ بودھن ایم ایل اے شکیل عامر نے گزشتہ شب سے جاری بارش کے پیش نظر بودھن حلقے کے عوام کو سخت چوکسی اختیار کرتے ہوئے اپنے بچوں کو الیکٹرک اشیاء سے محفوظ رکھنے کی خواہش کی اور پولیس ڈپارٹمنٹ، اریگیشن، ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ایگریکلچر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ عہدیداران کے ذریعے وقتاً فوقتاً فون کے ذریعے تفصیلات حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ حجاج کرام کا قافلہ کلاسکس فنکشن ہال پہنچنے پر مسلمانان نظام آباد کی جانب سے استقبال۔ گزشتہ ایک ہفتے سے حجاج اکرام کی آمد اور حرمین سے واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی 60 حاجیوں کا قافلہ الحمدللہ بخیریت واپس آ چکا ہے۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع نظام آباد نے بعد نماز فجر متصلہ مقامی افراد کے ساتھ فنکشن ہال پہنچ کر حجاج کا استقبال کیا۔ واضح ہے کہ ہر سوسائٹی نظام آباد کے صدر مولانا شیخ اسماعیل عارفی نے اپنے جملہ اراکین و خدام کو ساتھ لے کر کل دوپہری حیدرآباد ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے تاکہ حجاج اکرام کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لی جا سکے، جس میں وسیم احمد خان، خازن سوسائٹی حافظ اکرم خان، محمد صدیق، فصیح پٹیل، عمران شریف شامل ہے۔ مولانا سید سمیع اللہ صدر جمعیت علماء نے تمام حجاج سے معانقہ کرتے ہوئے مبارکباد دی اور الحاج جمیل صاحب نے رخت انگیز دعا فرما کر سب کو اشک بار کر دیا اور ہر سوسائٹی ضلع نظام آباد و دیگر علماء کرام کا نام بنام شکریہ ادا کرتے ہوئے حسن خدمات کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ تمامی حجاج اکرام کا سامان ان کے حوالے کرتے ہوئے ان سے دعاؤں کی اپیل کی گئی۔ الحمدللہ ہر سوسائٹی ضلع نظام آباد گزشتہ کئی برسوں سے حجاج کی خدمت کو اپنا مشن بنا کر بے لوث اور بلا معاوضہ خدمت کرتی آ رہی ہیں۔ اس موقع پر وسیم احمد خان نے ریاستی حج کمیٹی کے صدر نشین و جملہ اراکین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال بہتر سے بہتر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ نیز شہر نظام آباد کے حجاج کے لیے واپسی پر ہر سال لائق لطیف کوک ماسٹرز کی جانب سے عمدہ، معیاری اور لذیذ پکوان کے ساتھ کھانے کا بہترین انتظام ایئرپورٹ پر کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی نہباب اور جملہ معاونین جزائے خیر دے۔ کلاسک فنکشن ہال کے مالک نثار احمد نے بھی اس استقبال میں حصہ لیا۔ بھاری بارش کی وجہ سے زیر آب علاقوں کا اربن ایم ایل اے بگالا گنیش گپتا نے لیا جائزہ۔ نظام آباد اربن ایم ایل اے بگالا گنیش گپتا گزشتہ کچھ دنوں سے ہونے والی موسلادھار بارش کی وجہ سے زیر آب علاقوں کا مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران کے ہمراہ جائزہ لیتے ہوئے شہر کے ناگارام، بھارتی رانی کالونی، پجاری کالونی، بابن صاحب پہاڑی، ڈوڈی کومریا کالونی، دھرم پوری ہلز کالونی کا جائزہ لیا۔ عہدیداران بابن صاحب پہاڑی کے پاس واقع فنکشن ہال میں قیام عمل میں لائے گئے بحالی مراکز میں سہولیات کا جائزہ لے کر مقامی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہونے والی بارش کے پیش نظر شہر کے عوام سخت چوکسی اختیار کرے اور آفات سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کو تیار کیا گیا ہے اور نشیبی علاقوں کے عوام کے لیے بحالی مراکز کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مفت طعام و پانی کی سہولیت کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ پورا تلنگانہ میں
काफ़ी बड़ा बारिश हो रहा है और ऐसा ही निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट ज़िले में और निज़ामाबाद शहर में भी कल शाम से बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रहे हैं। और मेरे साथ हमारे कमिश्नर साहब और हमारे लोकल कारपोरेटर्स, ऑफिसर्स, इंजीनियरिंग डिवीज़न सारे हम लोग सुबह निकल के दौरा कर रहे हैं। और नागारम एरिया को हम आए और 50 क्वार्टर्स, 80 क्वार्टर्स, दोडी कोमराय नगर, भारतनाथ नगर कॉलोनी, असद बाबा नगर कॉलोनी, ये सारे घूम के अभी हम बावन शाह पहाड़ी रोड में हैं। यहाँ पे किसी के घर में अगर पानी गया उनको शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे फंक्शनल मौजूद किए रेवेन्यू की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, और यहाँ पे खाना भी बना रहे हैं। कोई किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल निज़ामाबाद में ही रहूँगा जब तक बारिश कंप्लीट बंद हो जाएगा, जब तक पूरा मसला हल नहीं होगा मैं निज़ामाबाद से नहीं जाऊँगा। आप बेफिक्र रह जाइए। डी संजय ने किया बारिश से मुतासिर नशीबी इलाकों का दौरा। 3 कुंटल पकवान के जरिए खाने के पैकेट्स की रास तकसीम। गुज़िश्ता 2 यौम से जारी शदीद बारिश के सबब शहर के नशीबी इलाकों और डिवीज़न नंबर 11, 12 और 13, धर्मपुरी हिल्स, न्यू वेंगल, रॉक कॉलोनी व दीगर इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। इस बात की तला मिलने पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय ने आज इन बारिश से मुतासरा नशीबी इलाकों का दौरा किया और संगीन सूरत हाल का जायजा लिया और परेशान हाल शदीद मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना कर रहे अवाम से मुलाकात करते हुए इन्हें दरपेश मसाइल व मुश्किलात को समाअत किया। बातज़ा डी संजय ने अपनी जानिब से तकरीबन 3 कुंटल पकवान के जरिए खाने के पैकेट्स इन इलाकों के सैकड़ों गरीब अवाम में अपने हाथों से रास्ते तकसीम की। इस मौके पर फर्स्ट मेयर डी संजय ने परेशान हाल अवाम से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि दिन हो या रात, किसी भी वक्त कोई भी परेशानी लाहक हो तो इनसे राब्ता करें या इत्तला देने पर वो हर मुमकिन मदद के लिए अवाम के दरमियान हाजिर रहेंगे। डी संजय ने तेलंगाना रियासती हुकूमत व मुकामी आला कायदीन और जिला इंतजामिया व महकमे अरबाब से तवज्जो देने का मशवरा दिया। डी संजय ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत व मुकामी आला कायदीन निजामाबाद शहर की तरक्की व अवाम की खुशहाली के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन आज 2 यौम की शदीद बारिश और नशीबी इलाकों की सूरत हाल BRS हुकूमत व कायदीन तरक्याती इक़दामात व मनसूबों को आश्कार करती है। इन्होंने कहा कि इन सल्म और नशीबी इलाकों में जो इक़दामात कांग्रेस पार्टी दौर इख्तिदार में अंजाम दिए गए वहीं आज मौजूद है। बाकी बरसर इख्तिदार हुकूमत व इसके मुकामी आला कायदीन की गफलत व लापरवाही और अदम तवज्जो की बिना पर आज इन इलाकों की अवाम को शदीद मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना है। डी संजय ने इन इलाकों की अवाम को इस बात का तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी की जानिब से इनकी रास्ते क़ियादत में इन इलाकों को तरक्की दी जाएगी और अवाम के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर डी संजय के हमरा कांग्रेस जिले डेलीगेट मोहम्मद रब्बानी, कांग्रेस पार्टी कायदीन अफ़ान बिन अब्दुल्ला, मिर्जा वली बेग, सैयद अतहर अली, असद सोहेल, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद वसीम मौजूद थे। वार्ड नंबर 11 और 12 और 13 के हालात ऐसे है, पानियों से घरों के तरह है ना तकरीबन हालात बुरे हैं। इसकी वजह से सुबह 7 बजे के टाइम पे हमारे डी संजय साहब मुझे फ़ोन किए कि हालात क्या है, तो मैंने उनको बताया कि पूरे घरों के अंदर पानी है, रात से पूरा पानी में बहुत सारे लोग परेशान हैं, अभी किसी के घर में खाना नहीं पका। तो ये फौरी अन्ना सुनते ही फौरी खाने का इंतज़ाम कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सुबह से हम लोग तकरीबन 3 कुंटल खाना बांट चुके हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो हमारी बात को सुनकर संजय अन्ना जो फौरी खाने का इंतज़ाम किए, आज कई लोग दुआएं दे रहे हैं उनको। ये हमदर्दी का मामला जो हमेशा उनके जहन में बैठा हुआ रहता, आज अल्हम्दुलिल्लाह और ही बोलते ही वो जो करने से आज कई लोग दुआएं दे रहे। इसका मकसद ये है कि आज बदौलत कांग्रेस की, बदौलत जो है ना संजय अन्ना की नहीं बल्कि जो खिदमत करना उनके अपने दिल में पहले से ही बसा हुआ है, वो जो है ना वो शुरू से उनके अंदर ये चीज़ बसी हुई है। उस वजह से उन लोग सुनते ही फौरी जो है ना इस बात को अमल करे। और दूसरी बात बोलना ये है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोग खाना तो बांट रहे हैं, लेकिन कई घरों पे जा रहे हैं हम लोग, तो हर कोई यही बोल रहे कि जो है ना अभी तक कोई आके पूछे नहीं, कोई आके देखे नहीं। जब तेलंगाना में बारिश के बाद जुम्मा 28 जुलाई को भी तालीम इदारों को तातील। तेलंगाना रियासत में ज़बरदस्त बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने एक बार फिर तालीमी इदारों को जुम्मा 28 जुलाई को तातील का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जुम्मा को तालीमी इदारों में तातीलात देने का फैसला करते हुए वजीर तबीता इंदिरा रेड्डी को इस सिलसिले में अहकामात जारी करने की हिदायत दी है।
गुज़िश्ता हफ्ते से रियासत भर में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 2 दिनों में रियासत भर में इंतहाई मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इस पस मंज़र में हुकूमत ने स्कूलों को छुट्टी देने का फैसला किया है। रियासत में शदीद से शदीद बारिश होने के ताल्लुक़ से महकमा मौसमियात की जानिब से दिए गए इंतबाह के मुताबिक आरमूर शहर के नशबी इलाक़ों में मुक़ीम अवाम को सख्त चौकसी इख्तियार करने का ज़िले BRA सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने की अपील। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िला BRA सदर जीवन रेड्डी ने ज़िले में गुज़िश्ता कुछ यौम से मुसलसल होने वाली बारिश के पेश नज़र आरमूर हल्के के तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ महकमे जात से वाबस्ता अहदेदारान व अवामी नुमाइंदों के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आरमूर हल्के में मुक़ीम अवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात अमल में लाने के लिए अहदेदारान को हिदायत जारी की और शहर में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, तालाब, नदी, किनाल की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। लिहाजा ज़िम्मेदार अहदेदारान फौरी तौर पर हरकत में आते हुए मुख्तलिफ इलाकों को एहतियाती इक़दामात अमल में लाए और इसी तरह से सैलाब के खतरे से 2-4 नशीबी इलाकों के लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के ज़िम्मेदार अहदेदारान को अहकामात जारी किए। ఆలూరు ఎంఆర్ఓ గుడ్ మార్నింగ్ నమస్కారం. మీదేమైనా కట్టలు తెగినా? ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏమన్నా కట్టలు తెగినాయా? జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. మరి అలుగు మరి రూములు అలుగులు చూసుకోవాలా? वेलपुर मंडल के मुकाम पर भारी बारिश की वजह से मुतासिरा इलाकों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़िले में कुछ यौम से होने वाली मुसलसल बारिश के पेश नज़र वेलपुर मंडल के मुकाम के अलावा आरमूर से जगतियाल को जाने वाले कौमी शाहराह के साथ साथ पड़गल देहात को जाने वाले रास्ते पर वाक़े तालाबों में शगाफ पड़ने से बहने वाले पानी से मुतासिरा इलाकों का जायजा लेते हुए मुकामी अवाम को केबल TV और दीगर नशरियाती ज़राए अबलाग के जरिए मुतला करे ताकि मुकामी लोगों को शदीद बारिश के पेश नज़र किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के बारे में आगाह किया जा सके और कहा कि लोगों को आबशारों व दीगर सयाहती इलाकों के साथ साथ बाहर आने से रोकने के लिए इक़दामात अमल में लाने की पुलिस अहदेदारान को हिदायत दी और इरिगेशन अहदेदारान फ्लड में रहकर मौजूदा सूरत हाल का वक्तन फ़ौक्तन जायजा लेने का इजहार किया। ज़िले में गुज़िश्ता यौम से होने वाली मुसलधार बारिश के पेश नज़र आवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी अमल में लाने के लिए आरमूर शहर में हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाने का म्यूनसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान ने किया इजहार। आरमूर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाइस खेत खलियान पानी की जद में आने के अलावा कई मकामात पर वाक़ई सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक में खलल होने की वजह से अहदेदारों की जानिब से आमद रफ्त को रोक दिया गया और आरमूर मंडल के पिपरी व मंधनी के दरमियान वाक़ई सड़क कट जाने के बाइस सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान ने कहा कि जिले में गुज़िश्ता कुछ यौम से होने वाली मूसलाधार बारिश के पेश नज़र अवाम को बुनियादी सहूलियात के फराहमी अमल में लाने के लिए हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। ज़िले निज़ामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भारी सतह पर इनफ्लो आने की वजह से प्रोजेक्ट में 77,000 क्यूसेक सैलाब का पानी आने का बास प्रोजेक्ट से 26 गेट के ज़रिए 1,50,000 क्यूसेक ज़खायरा आब का अखराज अमल में लाया गया। जिले में होने वाली मूसलाधार बारिश के पेश नज़र SRSP प्रोजेक्ट की गुंजाइश 90.3 TMC होने के मुंजमिला 77.465 TMC ज़खाराब महफूज है। प्रोजेक्ट में पानी के इनफ्लो में इजाफा होने की वजह से गुज़िश्ता शब अहदेदारान की जानिब से पानी की जुआई अमल में लाने के ताल्लुक से जिले इंतजामिया को चौकस किया गया। इसी तरह से बरोज़ जुमेरात सुबह के अव्वलीन सातों यानी 11:20 पर प्रोजेक्ट के 8 गेट के जरिए 20,800 क्यूसेक को जिनको स्किप के तहत 4,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रोजेक्ट में
में सैलाब बढ़ने के बायस दोपहर के औकात कार ठीक 12 बजे इलाकों में 18 से जायद गेट के जरिए 50,000 क्यूसेक ज़खायर आब का अखराज अमल में लाया गया। इस मौके पर ओहदेदारों ने पावर जनरेटर का आगाज अमल में लाया। दोपहर के औकात कार ठीक 3 बजे 26 गेट के जरिए 50,000 क्यूसेक आबी ज़खायर का अखराज अमल में लाया गया। మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు మనం 50,000 క్యూసెక్లు గోదావరిలో వదులుకుంటూ 18 గేట్ల ద్వారా వదిలాము. మరి ఇంకా కూడా ఈ వరద ఇంకా పెరిగి మనకు 2 లక్షల క్యూసెక్ దాటే అవకాశం ఉంది. వచ్చే వరదను కూడా అంచనాలు వేసుకుంటూ మన సిబ్బంది మొత్తం కూడా ఇక్కడే ఉండి రౌండర్లకు వచ్చే వరదను అంచనా వేసుకుంటూ కింది వరకు గత 2 డేస్ నుంచి కూడా మీడియా గ్రూప్లో పోలీసు వాళ్ళకు రెవెన్యూ అథారిటీ కూడా ज़िले में गुज़िस्ता यौम से होने वाली बारिश की वजह से नियावा नंदी देहात में सैलाब की सूरत हाल दिखाई दे रही है। जिले में गुज़िश्ता यौम से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से नियावा नंदी देहात के तालाब के ज़खायर आब में इजाफा होने से अलुगु जाने वाले देहात में वाक़ मकानात में पानी दाखिल हो गया और नशीबी इलाकों में मौजूद एसी कॉलोनी से वाबस्ता अवाम महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं और इसके अलावा सड़कों पर पानी बहने से सैलाब की सूरत हाल दिखाई दे रही है। कई मुकामात पर सड़कें मुनक़ता हो गई है तो कहीं नदी नाले से पानी रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल होने से अवामी जिंदगी मफलूज हो गई है। डोनकेश्वर मंडल में गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली मुसलधार बारिश के पेश नज़र आज 70.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डोनकेश्वर मंडल में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से हर तरफ पानी नजर आने के अलावा खेत खलियान पानी की जद में आ गए हैं और कई मुकामात पर बारिश का पानी रिहायशी इलाकों व सड़कों पर जमा होने की वजह से राहगीरों और मोटरसाइकिल मालिकिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कदीम गेट की तरफ तवज्जो न देने के बाइस कांग्रेस पार्टी के साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। कांग्रेस पार्टी के साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 2 साल से प्रोजेक्ट से मुताल्लिका गेट की तरफ तवज्जो न देने वाले जिम्मेदार ओहदेदारान की हरकत पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि सीएम केसीआर मौजूदा प्रोजेक्ट में दिलचस्पी न लेकर गैर जरूरी प्रोजेक्ट की तामीर अमल में ला रहे हैं जिससे इस प्रोजेक्ट के ताल्लुक से कोई दिलचस्पी न लेने का इजहार किया। तालाब में मछलियों के लिए शिकार को जाने वाले शख्स गर्काब होने का वाक़या नंदीपेट मंडल के खुदावनपुर देहात में पेश आया। नंदीपेट मंडल के खुदावनपुर देहात में मुक़ीम अवाम के मुताबिक तफसीलात कुछ इस तरह से भारी बारिश के पेश नज़र खुदावनपुर तालाब के सतह में इजाफा होने के बायस इसी देहात से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साला एलप्पा मछलियों के शिकार के लिए जाकर अचानक पैर फिसल जाने की वजह से गर्काब होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद ओहदेदारान जाए मुकाम पर पहुंचकर तलाश कर रहे हैं। तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में आबशार देखने के लिए जाने वाले 70 सयाह फंस गए, रात देर गए। NDRF का ऑपरेशन शुरू। तेलंगाना के मुलुगु जिले के जंगलाती इलाके बारिश की वजह से कई सयाह फंस गए हैं जिन्हें बचाने के लिए NDRF की टीम रात देर गए रवाना की गई। बताया जाता है कि चार की सुबह 100 से ज्यादा सयाह वीरभद्रा वरम गाँव के मजाफात में वाक़ मटियंद्रा आबशार देखने गए थे। शाम को वापसी के दौरान रास्ते के दरमियान नदी का पानी से बहने लगा। नदी का पानी बहने से सयाह जंगल के इलाके में फंस गए। गाँव वालों का दावा है कि तकरीबन 50 से 70 सयाह फंसे थे। इत्तला मिलने पर हकाम ने सयाहों की हिफाजत के इक़दाम किए। SP गोशी NDRF फोर्सेस को रात 12 बजे तलब कर लिया और तमाम सयाहों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। भारी बारिश के बावजूद भी खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन के ताल्लुक से GTPL के 6 की जानिब से खुसूसी पेशकश। शहर में कुछ यौम से होने वाली मूसलाधार बारिश के अलावा गुज़िश्ता शब जारी भारी बारिश के बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन खुसूसी दिलचस्पी के साथ खिदमत अंजाम देते हुए आवाम का दिल मोह लिया। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर जमा पानी की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाने के साथ साथ ड्रेनेज का रुख मोड़ कर बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए। ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి కూడా ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసు వారి విజ్ఞప్తి। ఇప్పుడు మీ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడెక్కడ రహదారులు జలమయమయ్యాయి, ప్రజలకు ఎలాంటి ముఖ్యంగా నా నార్త్ సర్కిల్ పరిధిలో మాకు మాక్లూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇక్కడ మాణిక్ బండార్ చెక్క దగ్గర ఖాన్ చెరువు గత సంవత్సరం తెగిపోవడంతో అక్కడ వర్షంకి చేరుకున్న నీళ్లు వచ్చి ఎక్కువగా ఫ్లోటింగ్ జరుగుతుంది। మీరు చూస్తున్నట్టు ఇక్కడ ఈ నిజామాబాద్ నుండి ఆర్మూర్ వైపు వెళ్ళే రోడ్డు పైన ఈ డేంజరస్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మేము దగ్గరుండి ఈ రోడ్డు క్రాస్ అయ్యే చోట ఎక్కడైతే ప్రమాదం ఉందో అక్కడంతా కూడా వన్ వే చేసి ట్రాఫిక్ను డైవర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది।
మిగతా నవీపేట్ దగ్గర అక్కడ యాంచా దగ్గర కానీ మిగతా ఈ నాలేశ్వర్ దగ్గర కానీ మా ఎస్ఐ గారు క్రాసింగ్ పాయింట్లలో వెళ్ళి చూస్తున్నారు. ज़िला जगतियाल क्रोडला में शदीद बारिश होने के पेश नज़र अवामी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई. जिला जगतियाल कोरटले में मुसलसल जारी भारी बारिश के पेश नज़र गुज़िश्ता शब वार्ड नंबर 21 में वाक़ई 100 घर पानी की जद में आ गए, जिससे मुकामी मक्कीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा. वो उनके पास मौजूद ग़िज़ाई अशिया के अलावा दीगर साज़ो सामान भीग जाने के अलावा कल से उनके पास बरक़ी मुंतक़े होने के ताल्लुक़ से हासिल करदा इत्तला पर वार्ड नंबर 21 के काउंसलर मोहम्मद अनवर ने वार्ड में वाक़ई तमाम मकानात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से समाअत किए हुए मसाइल के हल के लिए MLA कोरटले से नुमाइंदगी की. कांग्रेस कायदीन ने बारिश से मुतासिरा इक़लती इलाकों का दौरा करते हुए लिया जायज़ा. आज कांग्रेस रियासती नायब सदर ताहिर बिन हमदान, शहरी सदर केशव वेणु, साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर व कांग्रेस प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम ने बारिश से मुतासरा इक़लती इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इनकी मदद के लिए खिदमत करने का हुकूमत से मुतालबा किया. इस मौके पर डिवीज़न नंबर 11 कांग्रेस ज़िम्मेदार अब्दुल करीम और डिवीज़न नंबर 12 ज़िम्मेदार मुजाहिद खान की जानिब से जारी फलाही खिदमत का जायज़ा हासिल किया और इनकी खिदमत की सताइश के इस मौके पर इनके हमरा गुरबा में ग़िज़ा की तक़सीम भी अमल में लाई गई. इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस रियासती इक़लती मोतमिद उबैद बिन हमदान, उबैद बिन अब्दुल्ला व दीगर मौजूद थे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाअल्लाह. मुत्तहदा जिले में भारी बारिश के सबब तालाबों में सैलाब का मंजर, कई सड़कें हुई ज़ेर-ए-आब. नंदीपेट मंडल के खुदावनपुर में मछली के शिकार को जाने वाला शख्स हुआ गर्क़. भारी बारिश से मुतासरा इलाकों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अहदेदारों के हमरा लिया जायजा. बारिश के सबब इस माह के 28 तारीख को भी स्कूल को रियासती वज़ीर आला KCR ने किया तातिल का ऐलान. शहर के बारिश से मुतासिर इलाकों का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने बल्दी अहदेदारों के हमरा लिया जायजा व अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें. बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने बारिश के मद्देनजर अहदेदारों के साथ बजरिए फ़ोन इजलास अमल में लाते हुए क़ब्ल वक्त अव्वाम को मदद फराहम करने के लिए दी हिदायत. वो अव्वाम को मोहतात रहने व अव्वामी नुमाइंदों को अव्वाम की खिदमत के लिए दी हिदायत. इस RSP में पानी का इजाफा 26 गेट्स के जरिए 1,50,000 क्यूसेक पानी का अखराज. निर्मल जिले के कड़म प्रोजेक्ट में पानी की आमद 14 गेटों के जरिए पानी का अखराज, लेकिन 3 गेट खराब. रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने लिया जायजा. आरबन रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉल के जरिए अहदेदारों से हालात का लिया जायजा. वो दी मुख्तलिफ हिदायतें जारी. आज के लिए फ़िलहाल इतना ही. इंशाअल्लाह मज़ीद ख़बरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दी इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.